all the esteemed delegates and attendees present here. I, Surbhi Vaid, welcome you all on the second and the final day of Global Soccer Conclave's third edition. I hope you are all charged up and as excited as you were yesterday for this football Mahakumbh. Before we start today's proceeding, let me quickly introduce our sponsors and powered by partners, because without their support, this mega event wouldn't have been possible. We are extremely happy to introduce our title sponsors Tech Mahindra, the tech supergiant, and Amazon Web Series, the leading cloud computing solution provider. The government of Odisha powers the Conclave initiative through their vision and mission for reshaping Indian sports holistically. The Conclave is also empowered by the Federation of Indian Chamber of Commerce, the largest and the oldest chamber of India supporting sports, especially football. We also welcome Sports Next as our powered by partner, the Sports EdTech platform, which is bringing quality international education with the best industry integration experiences, and Sportscom Industry Confederation, the emerging sports-specific vertical under the Confederation of Indian Industries. We're also happy to introduce and announce that Johan Cruyff Institute, European Business and Technology Center, Sports Tech X, and Pillai FIFA CIES Sports Management as our knowledge partners. And Netrin Sports Technologies, First Beat Technologies, Excelio GPXE, Nutra Supplements, Gallant Sports and Infra, Debatable, Selville One Group, News 9 Live, Hotel Yogi Executive as various associate partners and sponsors. It's my honor to invite a former football player and now the newly elected president of All India Football Federation, Mr. Kalyan Chaubey, on the stage. And for his felicitation, I'd like to invite Colonel Dr. S.D. Sharma on the stage. I also request Dr. Shaji Prabhakaran, General Secretary AIFF, to join us on the stage, and Dr. Amol Patil, Executive Director, Global Soccer Conclave, to felicitate him. I also request Mr. Sunando Dhar, Deputy General Secretary AIFF, to join us here on the stage, and Commandant S.C. Nair to felicitate him. I may now request Mr. Kalyan Chaubey to say a few words and share his mind about Indian football. नमस्कार। मंच पर आज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर साजी प्रभाकरन, हमारे न्यूली प्रोमोटेड डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सुनंदो धौर, यहाँ के ऑर्गेनाइज़र और इस कॉन्क्लेव में आए हुए से फुटबॉल के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद कि भारतीय फुटबॉल संघ में एक लंबे समय के बाद चुनाव होने के पश्चात आज मेरा भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप से पहला पब्लिक स्पीच है। मैं कमांडेंट साहब और डॉक्टर संदीप जी को धन्यवाद करता हूं, इनके एंटायर टीम को धन्यवाद करता हूं, जिस तरह से उन्होंने स्पोर्ट को, फुटबॉल को ग्राउंड में खेलने वाले उन खिलाड़ी जिनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अधिक होते हैं, जिनके लिए गेम जाना जाता है, और ग्राउंड के बाहर इस स्पोर्ट को
किस तरह से कॉमर्शियली लोगों तक पहुंचाया जाए, रेवेन्यू लाया जाए, तभी जो लड़के खेल रहे हैं उनकी साध्य और साधन को पूरा किया जाए। इसकी जो दोनों की समन्वय है, थ्योरी और प्रैक्टिकल जानने वाले दोनों लोगों को मिलाने के लिए मैं इस कॉन्क्लेव को धन्यवाद करता हूँ। मुझे जब यहाँ बुलाया गया तो मैंने पूछा था कि आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं सुनने के लिए। तो मुझे बताया कि फुटबॉल के रोड मैप कैसे हो, मैं या हम भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के पास से ये सुनना चाहते हैं। तो मैंने कहा अभी 48 घंटा भी नहीं हुआ, यदि मैं यहाँ खड़ा होकर 140 करोड़ आबादी वाले देश के फुटबॉल के रोड मैप बता दूँ तो मैं मैजिशियन हूँ। इसीलिए हम रोड मैप के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाया, एक योजना बनाया। पहले तो मान लीजिए कोई पेशेंट यदि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर संजय रंजन दासगुप्ता जो कि लंबे समय से ईस्ट बंगाल क्लब के साथ जुड़े हुए ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, यहाँ आपके सामने अपने बात भी रखे हैं। मैं जब ईस्ट बंगाल में खेला उनसे कई बार अपने लिए ट्रीटमेंट लिया, दूसरे खिलाड़ियों के लिए ट्रीटमेंट के लिए उनके साथ गया। तो हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बहुत सारे टेस्ट देते हैं ये पता करने के लिए कि बीमारी क्या हुआ, ब्लड टेस्ट, ECG, एक्सरे। तो यदि हम समझते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत के फुटबॉल बीमार है, यदि मैं समझता हूँ कि भारत के फुटबॉल जो कर रहा है और इससे बढ़िया करना चाहिए, तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि है कहाँ, दिक्कत क्या है। सो डायग्नोस करने के लिए मुझे थोड़ा सा इस जो टेस्ट जांच के लिए थोड़ा समय चाहिए। इस हेतु हमारे जो 34 मेंबर एसोसिएशंस है, आप जानते हैं भारत के फुटबॉल जो सभी प्रदेश और यूनियन टेरिटरी मिल के चलाते हैं, हमारा जो कल पहला एग्जीक्यूटिव मीटिंग रहा, वहाँ मैंने अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी और मेंबर एसोसिएशन के पास ये आग्रह रखा कि आप क्या चाहते हैं कि आपके स्टेट किस तरह से डेवलप करे। अभी आज दूसरा दिन है मुझे इस दायित्व मिलने के बाद, लेकिन इससे पहले भी मेरे पास कई सारे लोग आते थे, मिलते थे और वो अपने विचार रखते थे किस तरह से भारत के फुटबॉल आगे ले जाना चाहिए। और मैंने भी कहीं किसी और के पास गया अपने विचार को रखने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा मेंबर एसोसिएशन से, आप बताएं, आप पौंडीचेरी के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, आप कैसे पौंडीचेरी को आगे ले जाना चाहते हैं या अंडमान को आगे ले जाना चाहते हैं? आप महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं, आप गुजरात के हैं, आप कैसे आगे ले जाना चाहते हैं? तो महाराष्ट्र के लिए जो प्लान होनी चाहिए वो अंडमान के लिए नहीं संभव है। तो भारत के लिए यदि आप फुटबॉल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सही है, भारत का एक टीम है, इंडियन टीम, लेकिन इंडियन नेशनल टीम बनेगी इस 34 स्टेट एसोसिएशन से, मेंबर एसोसिएशन से। और सभी को जो अपने के लिए जो डेवलपमेंट चाहिए वो उनके पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा अपने को। तो हमने अगले मीटिंग, जैसा कि आपने जाना कि इन वर्षों डूरन कप बहुत लोकप्रियता के साथ चल रहा है, मणिपुर में कुछ 35,000 लोग आए थे एक फुटबॉल मैच देखने के लिए। कोलकाता में ईस्ट बंगाल मोहनबागान मैच में भी बहुत सारे लोग हुए थे। तो वहाँ जब हम मिलेंगे, सभी मेंबर एसोसिएशन अपने रोड मैप हमारे पास रखेंगे। मैं कहूँगा मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ, मेरे टीम में मेरे बिना मेहनत के मेरे पास 2 लोग हैं जिनके भारत के फुटबॉल और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के विषय में बहुत जानकारी है। डॉक्टर साजी प्रभाकरन जो हमारे सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए हैं कल, जिनको मैं कम से कम 20 वर्षों से जानता हूं, जिन्होंने फीफा में काम करने की अनुभव है, जिनको AFC में काम करने के अनुभव है, जिनको AIFF में काम करने के अनुभव है, और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को इन तीनों बॉडीज़ के साथ उनके कोऑर्डिनेशन बना के रखा जाए, तो डॉक्टर साजी प्रभाकरन को जानकारी है। ये भारत के लिए भी गौरव की बात है और मेरे लिए हर्ष की बात है कि मुझे साजी प्रभाकरन को अपने टीम में मिला। दूसरी बात है, मान लीजिए आप कहीं आते हैं,
एक न्यू टीम आती है तो न्यू टीम को कुछ समय लगता समझने के लिए हमको क्या करना है, ऑफिस के बोर्ड रूम किधर है, वॉशरूम किधर है, पता करने के लिए थोड़ा समय लगता है। लेकिन हमारे पास है सुनंदो धर, जो कि एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। भारत के फुटबॉल एक कठिनाइयाँ के बीच से चल रही थी। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से लीगल बैटल रहा और इन्होंने 13 वर्षों से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में है। तो मुझे बिल्डिंग हाउस में घुसने से पहले मुझे पता था कि बोर्ड रूम किधर है, वॉशरूम किधर है। तो मुझे सुनंदो धर का जो अनुभव मिलेगा वहाँ से मैं समझता हूँ कि ये जो टीम है, ये टीम बहुत अच्छी तरह से भारत के फुटबॉल को आगे ले जाने की प्रयास करेगी। मैं बहुत लंबा समय आपसे बात नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो भी दूसरे कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को भी आगे लेके बढ़ा जाए। लेकिन मेरा इस सभागार में उपस्थित सभी स्टूडेंट यदि है जो मान लीजिए स्पोर्ट्स को अपना कैरियर मानते हैं, मैंने अपना अनुभव से देखा है कि हम जब एक कोर्स करके आते हैं, मान लीजिए हम सच्छल परिवार से हैं तो हम यूरोप में चले जाते हैं, इंग्लैंड में कोर्स करने चले जाते हैं। हम मध्यम वर्ग से हैं तो हम पुणे, महाराष्ट्र, बैंगलोर में चले जाते हैं। तो वहाँ जो सिखाया जाता है उसके साथ भारत के जो वास्तविक फुटबॉल की कठिनाइयाँ हैं उसके बहुत अंतर है। मैंने बहुत सारे पास्ड आउट यंग एनर्जेटिक एंथुसियास्ट ट्रेनी को देखा है जिन्होंने आकर बहुत कुछ करना चाहता है भारत को फुटबॉल को आगे ले जाने के लिए, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगा कि गूगल के कॉपी पेस्ट की वो ज्ञान है, या तो एक थ्योरी जो है उसी थ्योरी के अनुसार रटे रटाई पढ़ाई है। तो मैं कहूँगा कि भारत, यदि इस सभाघर में ऐसा कोई बच्चे हैं जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि आप अपना कोर्स करें और साथ ही साथ जहाँ आपके नज़दीक में जो लीग होती है, भले वहाँ पे लोग नहीं होते हैं क्योंकि उसके प्रमोशन सही नहीं है, उसके शायद ब्रॉडकास्टिंग सही नहीं है, लोग कम होते हैं, लेकिन 2 टीम खेलती है, भले 36, 37, 38 डिग्री में खेलते हैं, ज़मीन में मैदान में घास नहीं है, खाली खेलते हैं, खाली उसके कोच खड़े होकर चिल्लाते हैं जीतो जीतो, अच्छा करो बोल के। आप जब तक उस मैच को नहीं देखेंगे, जब तक उस टीम के ड्रेसिंग रूम में जाने की प्रयास नहीं करेंगे, और मैच नहीं, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस हालत में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यदि वो नहीं देखेंगे तो आपकी जो शिक्षा, आपकी जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ कागजी रह जाएगी, वास्तव में देश की फुटबॉल को आगे ले जाने में बहुत बड़ा भूमिका नहीं निभा सकता। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, मैं भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष होने के नाते भारत के हर उस व्यक्ति का जिसका जो भी हो, इंटेलेक्ट हो, समय हो, श्रम हो, सामर्थ्य हो, अर्थ हो, जो भी है, जहाँ से भी वो अपना भूमिका निभाना चाहते हैं भारत के फुटबॉल को आगे ले जाने के लिए, मैं सबको स्वागत करूंगा, सबके लिए समय रहेगा, सबको मैं बुलाऊंगा, आइए जुड़िए, भारत के फुटबॉल को आगे ले जाते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा मन में नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इतना थॉट्स था, ये प्रोजेक्ट थी, ये प्लान था, लेकिन मैं तो मिल ही नहीं पाया इन लोग से, मैं तो बता ही नहीं पाया। तो इस कारण से हम वो व्यवस्था करेंगे ताकि आप सभी का थॉट्स, आप सबकी भूमिकाएं, आप सबकी प्रेजेंटेशन हम तक पहुँचे, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी की जाए और वहाँ से किस तरह से हम आगे ले जा सकते, आगे बढ़ सकते हैं, उसकी हम व्यवस्था करेंगे। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। आपके मन में ये भी आ सकता है कि मैं हिंदी में क्यों भाषण रखा, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ? और हमारे ऑडियंस में जब है हिंदी नहीं जानने वाले व्यक्ति, तो मेरा मन में ऐसा है कि भारत में जितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, अधिक से अधिक बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल है, उनको इंग्लिश तो जब तक हम अपना विषय को उन बच्चों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, हम क्या सोचते हैं और वो क्या कर सकते हैं, तब तक हम इस तरह के सभाघरों में बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन शायद मैसेज जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाता।
इस कारण से मैंने बात को हिंदी में रखा। और एक दूसरी सोच भी है मेरा। देखिए, हम भारत के फुटबॉल को लेकर बात कर रहे हैं, यानी कि भारतीयत्व को लेकर बात कर रहे हैं। जब तक हमारे अंदर वो भाव नहीं, राष्ट्रवाद नहीं आए कि हम अपने देश के लिए गौरव ना बोध करें, हम ये ना सोचें कि हम भारत के हैं और भारत हमारे के लिए गौरवमय देश है, तो क्या है कि कम से कम हम अपने भाषा तो बोलेंगे। भाषा यदि हम अपने नहीं बोले तो फिर हम कैसे भारतीय होंगे। तो शायद आगे से मैं और हमेशा से मैं हिंदी में ही साइन करता हूँ, सिग्नेचर भी मेरा हिंदी में है और भाषण भी हिंदी में है। और मैं आप सब से इस मन से आग्रह रखूँगा कि आप भी हिंदी में ही बात करें, ताकि हम यहीं से शुरू करें कि हम भारत है, तो देश के बाहर जब जाएंगे तो भारत को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो अलग होगी, ना कि हम किसी और को कॉपी पेस्ट करके करेंगे। मैं दोबारा आभार व्यक्त करता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्होंने मुझे बुलाया इस कॉन्क्लेव में। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे पेशेंस के साथ सुने हैं, धैर्य के साथ सुने हैं। नमस्कार सभी को। Hello. Thank you, Mr. President, sir, for those kind and encouraging words. The President, sir, has given a good message to us, and I would like to summarize it for our dignitaries who are present, who were not able to comprehend maybe because it was in Hindi, our national language. So, sir has given his views and expressed his views as the President that he would like to bring out the future progress of the country and the football development in the country in coming years with his newly elected team, with the 3-point agenda. That is initiating a dialogue with all the stakeholders to basically get the reality and information from ground zero, to bring the inclusivity of all the sectors which are the stakeholders in the overall development of football in the Indian subcontinent, and then plan the road ahead involving all these sectors and getting their suggestions and do whatever is the best for the football, for the development of this football in the Indian subcontinent. And we are thankful to President Sir for his kind and encouraging words today. I'll request Surbi to please initiate the next proceedings. हमें यकीन है कि आपके प्रोत्साहन से भारतीय फुटबॉल बुलंदियां छुएगा। कि प्लीज़ गिव इट अप फॉर मिस्टर कल्याण चौबे। I may now request Prasanna Chaudhary to join us on the stage, Managing Director, Nutra Supplements, the only Indian company certified as drug-free by BSCG USA, to join us on the stage for the unveiling of the nutrition booklet. I will also request Mr. Kalyan Chaubey to do the honors. Nutritional supplements for football, a dope-free model. I would please request you to sign the footballs kept here as a souvenir for GSE. Thank you so much.
call Lavanna to come on stage. Just to inform the President, Lavanna is a under-17 women's player from Gujarat, and she looks her career in football and football education. I will request Mr. President to give one of this ball to this girl so that the dream and the passion remains alive and pumping. Thank you so much for joining us here. You may now take your seats. Thank you so much. A big round of applause for them, please.